Good morning, brothers and sisters. We want to thank God for bringing us here this morning to fellowship together. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुबह हम सबको यहाँ लाने के लिए ताकि हम मिलके एकत्रित हो सके. It is a good thing to be in the house of God. और ये एक अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के भवन में हों. There are many who want to be here and they are not able. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आना तो चाहते हैं मगर वो नहीं आ पाए. You have some lying in sick bed. कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर पे हैं. But the grace of God brought us here this morning. मगर परमेश्वर की दया से परमेश्वर हमें यहाँ पे लेके आए. It is not by our strength, it is not by our might. ये हमारी ताकत या सामर्थ्य से नहीं है. But it is because of the goodness of God. मगर ये परमेश्वर की भलाई की वजह से है. So we have to be very joyful in the house of God. तो हमें परमेश्वर की हुजूरी में बहुत खुश The होना है. psalmist said that I was glad when it said unto me, let us go into the house of God. और भजन लिखने वाले ने कुछ ऐसा कहा कि मैं खुश हुआ जब उन्होंने बोला कि आओ खुदा के घर चलें. So each time we come in the house of God, we need to put that smile on our faces. तो जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं हमें हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए. We need to forget about what we have on mind and just leave on to Jesus. और हमें हमारे जो मन में है जो भी है उसको भूलकर सारी चीजें परमेश्वर को दे देनी, यीशु मसीह को दे देनी चाहिए. I don't know how you have come this morning, but I want you to focus on Jesus as we worship this morning. और मैं नहीं जानता आप यहाँ कैसे आए हैं आज सुबह मगर मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह पे अपने ध्यान को केंद्रित करें जैसे आप आज आराधना करते हैं. He is the solution to every problem we seek. वो हर एक उस समस्या का हल है जो हमें परेशान कर रही है. So let us open our hearts this morning to receive the word of God. तो क्यों ना हम अपने हृदय को आज सुबह खोलें ताकि परमेश्वर के वचन से हम चीजें इकट्ठा कर सकें. We will ask Thomas Maulu Jr. to open us in the word of prayer. ब्रदर थॉमस मौलू जूनियर से हम दरख्वास्त करेंगे कि हम हमारे को प्रार्थना में लीड करें. In Jesus' name. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. At this time we will invite the worship team. और ये समय है जब हम अपनी आराधना की टीम को आगे बुलाएंगे. That will be headed by our brother Christian. और वो भाई कृष्ण के द्वारा संचालित की जाएगी. If you are privileged to stand and worship, you can stand and worship with the choir. अगर आपके पास ये सौभाग्य है कि आप खड़े हो सकते हैं तो क्यों ना हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना If you करें. want to sit, you can sit. अगर आप बैठे रहना चाहते हैं आप बैठ भी सकते हैं. Whatever way you think you can worship God, you Just can because- worship God this morning. जिस भी तरीके से अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर की आराधना करें आप उसकी आराधना करिए. Don't think about who is sitting beside you or who is standing beside you. और ये ना सोचें आपके पास में कौन बैठा है आपके पास में कौन खड़ा है. Just open up your heart this morning and you will be filled. बस अपने हृदय को आज की सुबह खोल दीजिए और आप भर जाएंगे. So the choir, please. तो Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. हालेलुया. Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की जय हो. Like the worship leader said, it is always a privilege and an opportunity to be in the presence of the Lord. और जैसे कि एंकर ने बोला कि एक सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के भवन में आज उपस्थित हो पाए हैं. And worship is something that our God requires us of. और आराधना एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं. And so I want you to open up your heart as we begin to worship in the presence of the Lord. तो मैं चाहता हूँ आप अपने हृदय को खोलें जैसे हम परमेश्वर की आराधना इस भवन में करना शुरू करते हैं. Let us invite the presence of the Lord as we begin to worship. और क्यों ना हम परमेश्वर की हुजूरी को यहाँ आमंत्रित करें जैसे हम आराधना करते हैं. Because as we worship God, He's going to open the floodgates of heaven, as the song says. और जैसे हम आराधना करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं. ये गाना भी यही कहता है. So let us cry together this morning unto God. Let it reign in our midst. Let His presence reign in our midst. तो आज परमेश्वर के सामने आके रोए और कहें कि परमेश्वर तेरी हुजूरी हमारे सामने एक बारिश की तरह बरसे हमारे बीच में. In Jesus' name. यीशु के नाम से आमीन. Let it rain. Don't let it rain. Open the floodgates of heaven.
Open the floodgates of heaven.
proceed with the songs, let us continue to look up to God Almighty. जैसे हम गानों के साथ आगे बढ़ते हैं, कृपया परमेश्वर की तरफ अपनी नजरें बनाए रखें। Let us focus on Him to fill us with His Holy Spirit अपना ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करें ताकि वो पवित्र आत्मा से आपको भर सके। as we take our second song. जैसे हम दूसरे गाने को लेते हैं।
है इस दिन and को। consider Him as our firm foundation. Yeah. और हमारे दृढ़ घर की तरह उसको मान ले। Let God be the rock on which we stand. परमेश्वर हमारी चट्टान बन जाए जिसके ऊपर हम खड़े हों। Because when God is our foundation, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी नींव हो, no matter what comes our way, कुछ भी क्यों ना आए हमारे सामने, no matter the tribulations and trial we face, Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaken. I've never been so glad. I put my faith in Jesus.
ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। We thank you ever so much. Be thou exalted in our midst, O God. परमेश्वर हमारे बीच ऊंचा उठाया जाने वाला हो You सके। take the glory and honor. आप सारी आदर और महिमा ले लीजिए। waiting for your cry. बस विश्वास करें कि परमेश्वर उपस्थित है और आपके रोने को सुनना चाहता है. I just
just want you to surrender everything unto Him this hour. और आज की सुबह हर एक चीज उसके ऊपर समर्पण करते हैं I just want you to surrender the circumstances and the difficult situations this hour. हर एक परेशानियां, हर एक ऐसी कठिन परिस्थितियां जो आपकी हैं, आप उसको समर्पित कर दीजिए, Because His hands are always open to us. क्योंकि उसके हाथ हमारे लिए हमेशा खुले हैं। He's waiting for us to cry out to Him. वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसको पुकारें। So this hour, surrender your situation and surrender everything unto God. तो हर एक चीज को आप परमेश्वर को समर्पण कर दें। There's nothing too big for Him. कुछ भी चीज उसके लिए ज्यादा बड़ी नहीं है। There's no situation too difficult for Him. कोई भी परिस्थिति उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। Our God is able. वे हमारा परमेश्वर करने वाला है। Surrender it unto Him this hour. उसको समर्पित कर दीजिए आज।
परमेश्वर। Father, we present the rest of the service into your hands. परमेश्वर हम आगे की सारी आराधना और सर्विस को अब आपके हाथों में सौंपते हैं। We pray that you take control of every aspect of this service going forward. हम चाहते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक चीज जो आगे होने जा रही है आप निरंतर लें। Open our hearts and our minds, O God, to be receptive to your word, O God. परमेश्वर हमारे दिलों को और हमारे मनों को तैयार कर ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर। And help us, O God, so that your words can be sown unfiltered soul. और परमेश्वर हमारी सहायता कर कि जो शब्द है, जो तेरा शब्द है परमेश्वर, वो एक अच्छी भूमि पे बोया जाने वाला हो सके। That there will be transformation in our lives, O Father. और हमारे जीवन में परिवर्तन होगा परमेश्वर। We thank you this hour. हम आपको इस घंटे धन्यवाद करते हैं। We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। Put your hands together for Jesus this morning. Clap for Jesus this morning. Are you happy to be in the presence of God? If you are happy to be here, I want you to shout me Jesus! Shout me Jesus! Thank you. Please have a seat. कृपया अपने स्थान पर रहें। You know it is a good thing to be in the house of God. और आप जानते हैं परमेश्वर के भवन में होना क्या I अच्छी don't बात है। know how you feel this morning, और मैं नहीं जानता कैसा आपको आज महसूस हो रहा है सुबह, but I'm filled with joy this morning. मगर आज की सुबह मैं आनंद से भरा हूँ। You know the reason we come to church is to surrender all to God. क्या आप जानते हैं कि जो वजह हम परमेश्वर के भवन में जो हम आते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर को चीजें समर्पण कर सकें। I don't know how you have come this morning, मुझे नहीं पता आप आज की सुबह कैसे आए हैं, but I just want you to keep connecting your spirit. मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ें Just keep connecting to the Holy Spirit this morning. और आज पवित्र आत्मा से जुड़ते रहें आज की सुबह। And trust me, you will not go back the same. और मेरा यकीन करें कि आप वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे और वैसे नहीं जाएंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम से we will stop here and invite our first-time visitors. और Joy of God here. मगर हम परमेश्वर की उपस्थित के आनंद को यहाँ महसूस करते हैं। We feel the presence of God here. हम परमेश्वर के हुजूरी को यहाँ महसूस करते हैं। So if you come around anytime, तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आए you can join us to worship on Sunday. तो आप यहाँ पर संडे को आराधना हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. So we will stop here and ask for testimonies. और अब हम यहाँ रुकेंगे और अब समय होगा गवाहियों का। कि कान खुले हैं हमारी दरख्वास्तों के लिए। He's a God who listens and hears everything we say. और वो ऐसा परमेश्वर है कि जो भी हम बोलते हैं वो उसको सुनता है। He's a great God. वो एक महान परमेश्वर है। We have to depend on Him. हमें उस पर निर्भर करना है। Despite the circumstances we are going through, और जितनी भी परिस्थितियां हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, we have to keep trusting Him. हमें उस पर भरोसा करना है। I know sometimes it may seem that He's not hearing, मुझे पता है कई बार ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रहे हैं, but He's a God who knows what is good for you. मगर वो ऐसे परमेश्वर हैं जो जानते हैं आपके लिए क्या भला है। So just believe that everything you have come with, God has already heard you. तो याद रखें कि जो भी चीज आप परमेश्वर के सामने लाए हैं, परमेश्वर ने आपको सुन लिया है। We will stop here and call Pastor और हम यहाँ रुकेंगे और पास्टर को आगे बुलाएंगे to pray for the testimonies and the prayer requests. जितनी भी गवाहियां हैं और प्रार्थना के विषय हैं उनके लिए प्रार्थना करें। Praise the Lord. Hallelujah. It's so good to see you all. सबको देख करके बहुत खुशी है। Why don't you shake hand with your neighbor and say, I'm glad that you chose to be in the house of God. अपने पड़ोसी साथ मिला के बोले मैं खुश हूँ कि आपने चुनाव किया कि आप परमेश्वर के भवन में आ सके। Hallelujah. Let's give a clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There's power in Jesus' name. Hallelujah. What a joy it is in the presence of God. उसके नाम में सामर्थ है और उसकी उपस्थिति में अद्भुत आनंद है। There is no better joy. We could be anywhere out, busy with different things, but we praise God. There is an uplifting joy when we choose to come into His presence. हम दुनिया के बहुत से कामों में अपने आप को मशगूल कर सकते हैं, व्यस्त कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के भवन में जब आते हैं वहाँ पे हमें एक अद्भुत तरीके से उठाने वाला आनंद और संभालने वाली सामर्थ्य मिलती है. So we thank God.
Hallelujah. Let's pray for one another. Maybe wherever you are seated, you can join the hand of the person next sitting to you. Hallelujah. Because Bible says if two of you will agree, whatever will agree in my name, I will give it to you. Bible लिखा है तुम में से दो जन अगर एक मन के हो जाएं, तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा. Hallelujah. There is power. We thank God. We have heard that how God has really beautifully worked in the lives of all. हमें बड़ी गवाहियों को सुना कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से जीवनों में काम किया. We thank God. Hallelujah. We just thank God for all the testimonies that we have heard. And we know that our God is a prayer answering God. These testimonies are the evidence. ये गवाहियां इस बात का सबूत है. हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. And whatever we have, we say that bring it. Let's come boldly at the throne of His grace, because His grace is sufficient for all kinds of needs. Hallelujah. अब उसको वचन ने कहा हम आपके साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख चले, क्योंकि हमारी हर प्रकार की आवश्यकता के लिए उसका अनुग्रह काफी है. Hallelujah. Hallelujah. We just thank you, Lord Father. We just thank you for each and everyone present in this room, O Lord. हम एक एक व्यक्ति के लिए जो इस कमरे में धन्यवाद करते हैं प्रभु. We pray if they are facing any challenge, whether in their body, in their finances, in their relationships, in any kind of situation, we release the power of God in Jesus' name. Hallelujah. यीशु के नाम में कोई भी किसी समस्या से ग्रसित है, यीशु की सामर्थ उनकी परिस्थितियों में बहने पाए. Hallelujah. We just thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We bless. We ask that you continue to bless our fellowship. Thank you, Holy Spirit, for being in our midst. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen. First of all, I'd like to say thank you to और God सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी for the opportunity इस मौके के लिए to stand here यहाँ पे खड़े होकर and minister through the offering. मिनिस्टर करने के लिए हदिये के दौरान. For starters, during the week I've been down with flu. और इस हफ्ते में मुझे फ्लू हो गया था और मैं उससे पीड़ित थी. And I was really worried that how am I going to sing? और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे गाना गाऊं. Because generally I'm not someone who does music. क्योंकि मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जो म्यूजिक में बहुत ज्यादा आगे है. And I was super worried. और मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित थी. But I give God the glory. मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ That as of today I'm fine. कि अभी मैं ठीक हूँ. So join me wherever you can. It's really a simple song. और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जहाँ भी आप चाहें. ये बहुत ही एक आसान गाना है. For the words that I'm going to sing in my language, और जो शब्द मैं अपने भाषा में गाने जा रही हूँ, the words mean you are a covenant keeping God. और उन शब्दों का मतलब ये है कि आप वाचा रखने वाले परमेश्वर हैं. So help me sing along. तो मेरी सहायता करिए कि हम साथ में इसको गाएं. Amen. Amen. Dinu osunga pangano Yahweh dinu osunga pangano Dinu osunga pangano Yesu dinu osunga pangano
chair and I almost slept. और क्या आप जानते हैं मैं यहाँ पे खड़ा था और मैं बस सोने ही वाला था. Yeah, it was so wonderful. इतना ज्यादा अच्छा था. Thank you. आपका धन्यवाद. We will ask our sister Chuku और हम अपनी बहन चुकू से अनुरोध करेंगे to come and pray for the offering. कि हदिये के लिए प्रार्थना. At this time, और ये समय होगा we will sit quietly हम आराम से चुप करके बैठेंगे and open our minds और अपने मनों को खोलेंगे, and open our hearts अपने दिल को खोलेंगे as we received the word of God. जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. So we will invite our brother और अपने भाई Obed, ब्रदर ओबेद को बुलाना चाहेंगे. who will be speaking to us today. तो आज का वचन हमारे साथ Put बांटेंगे your hands together as we walk on stage. और उनके लिए तालियां. Before we go into the word, इससे पहले कि हम वचन में चले, I really would request someone to please pray for me because I know it's not me who's going to be speaking. So, और मैं किसी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि मैं नहीं हूँगा जो अभी बोलेंगे. and Pastor Charles, if you could please pray for me, and not only for me, for everyone, so that the Holy Spirit speaks to each and everyone according to our needs. और पास्टर चार्ल्स, आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम सब के लिए, ताकि जो पवित्र आत्मा है वो हमसे बात करे. Hallelujah. Father, we just thank you, Lord. We ask your grace, Lord, to help us to continue to sit in your presence. Thank you for your presence thus far with us. And we pray, let the Spirit of God will speak to us this morning, Lord. As we go into the word, we come and obey in your hands. Use him as a vessel in your hand. And we pray that each one of us will have an open ear, and the Spirit of God will speak to us. And we are blessed so that we can move ahead with the word and with the direction that the Spirit of God wants to lead us. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. परमेश्वर के नाम की तारीफ. Hallelujah. All right. Praise the Lord. I do not know what to say. और मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूँगा. I actually do. मेरे को पता है वैसे. But, I wrote some things down yesterday by God's grace. और परमेश्वर की दया से मैंने कुछ चीजें तो कल लिखी थी. But right now, I don't know. When I look at them, they're somehow new to me. I don't know. और अब जब मैं उन्हें देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो कुछ नए से हैं. Yeah, but I thank God for everything. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक चीज के I was लिए. not able to sleep well last night. और मैं अच्छे से नहीं सो पाया कल रात को. Yeah, I'm bringing in all my excuses. So if I fumble, you get it right. तो मैं अपने सारे बहाने अभी दे रहा हूँ कि अगर मैं बीच में अटका तो आप उस चीज को समझ लीजिएगा. And I always say this. Look, people coming here for the first time, don't go out and say the preacher was crazy. The next time there will be someone else. Don't worry. और जो भी लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, बाहर जाके किसी को मत कहिएगा कि जो प्रचार कर रहे थे वो थोड़े से अजीब थे, क्योंकि अगली बार कोई और होगा. So this is Youth Sunday, hence Pastor gave me the opportunity. So, और ये आज जवानों का एतवार है, तो पास्टर ने हमें ये मौका दिया. praise God. परमेश्वर के नाम की तारीफ. So I was asking God, what shall I preach about? और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, पूछ रहा था कि मैं किस बारे में प्रचार करूं. And I had several topics in my head. और मेरे दिमाग में काफी भिन्न प्रकार के विषय थे. One of them was love. उनमें से एक था प्यार. But God did give me another word, and it said something. और परमेश्वर ने मुझे अलग वचन दिया जिसका मतलब कुछ और था. And I wrote chits, and I said, okay, God, whatever topic you decide for me, whatever topic, maybe I am not very eloquent at that very topic, but I know you will help me. और मैंने ऐसे काफी कागजों पे अलग अलग टॉपिक लिख लिए, और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उस टॉपिक पे या विषय पे बोल सकूं, लेकिन आप जो है समक्ष है, आप उस टॉपिक पे जो है हमसे बात करेंगे. So I cast out chits, and that very topic I was thinking before writing it. I said, okay, I'm going to put this topic away. और वो विषय लिखने से पहले मैं ऐसा कर रहा था कि इसको मैं साइड में रख देता हूँ. And then I said, no, if God has given to me, why not? If it's His will, then it will not come. और फिर मैंने सोचा कि अगर परमेश्वर की तरफ से है तो मैं लिख के डाल देता हूँ, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा मेरे हाथ में. And eventually that was the very topic. और अंत में वही जो विषय था मेरे हाथ में आया. So I thought, okay, let me try it once again. But then I thought, no, if God has given this to me, then He has given this to me. और मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, बट अगर परमेश्वर की तरफ से था तो वो परमेश्वर की तरफ से था. It's not a bad topic, but I did not know what to speak about. ये कोई बुरा विषय नहीं है, बट मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या बात करूंगा मैं. Yeah, so in case my network connection goes low, please bear with me. Okay? और अगर ऐसा हो कि मेरा नेटवर्क कनेक्शन या मेरा कनेक्शन लो हो जाए तो मेरे साथ रहिएगा. But I know one thing, that this is one thing that I always say, even through my broken language, God can speak to you. और ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी टूटी हुई भाषा के से भी परमेश्वर बात कर सकता है. Moses was a stutterer. और जो मूसा था वो हकलाता था.
And God spoke through him. और उसके से परमेश्वर ने बातचीत करी है So I know God will speak to you. और मैं जानता हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बात करेगा Because it's based on his word. क्योंकि ये जो है उसके वचन पे आधारित है। And the topic for the day is peace with God. और आज का जो विषय है वो है परमेश्वर के साथ शांति। So, yes, when I was thinking about it, I said, God, what do I say about peace? और जब मैं इसके बारे में तैयार कर रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर मैं शांति के बारे में क्या बोल पाऊंगा। God said, what is the opposite of peace, Obed? और परमेश्वर ने पूछा कि इसका विपरीत क्या है उबैद? Can anyone tell me what is the opposite of peace? क्या मुझे यहाँ कोई बता सकता है कि शांति का विपरीत क्या है? Distress, contentions, लड़ाई, yes, हिंदी में लड़ाइयाँ, भेदभाव, मतलब क्या मार काट और काफी चीजें हैं, restlessness जो बेचैनी, and the word which I got was anxiety. और जो शब्द मेरे पास आया था वो बेचैनी. बेचैनी था And tell me about it. I can really talk about anxiety और मैं उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल बात कर सकता हूँ because I've gone through it myself, मैं उसमें से होके खुद गया हूँ and I know people who have gone through it. और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी जो उस बेचैनी से होके गुजर रहे हैं। So yes, maybe God wanted me to talk about anxiety. तो क्या हो सकता है कि परमेश्वर जो था वो बेचैनी के बारे में बात करना चाहते हैं, चिंता। You know, because anxiety, frustration, everything, all these things are the opposite of peace. और चिंता, बेचैनी, सब कुछ जो है वो शांति के विपरीत है। And what do you understand when you think about the word peace? और आप लोग क्या समझते हैं जब आप शांति के बारे में या शांति का जो शब्द है वो सुनते हैं? Anyone? कोई भी? Okay, Sister Manisha says satisfaction. और सिस्टर मनीषा ने बोला है संतुष्टि। Rest. Okay, the brother Frank said rest. ब्रदर फ्रैंक ने बोला है आराम। Okay, And sister said, I'm sorry, I do not remember your name, but Jimmy. All right, sister says love. और सिस्टर ने कहा है प्यार। Good state of being. Good state of being. Okay, brother Paul says good state of being. और ब्रदर पॉल कह रहे हैं कि जीने का एक अच्छा जीने का स्तर। Okay. So, you know, there are several definitions that I found, but one which I found was the absence of chaos or war. और मैंने काफी इसके उदाहरण और इसके मतलब अर्थ ढूंढे और उसमें से एक था कि जिसमें गड़बड़ी की या लड़ाई की कमी, ना होना। लड़ाई की और गड़बड़ी की कमी होना ना। या ना होना, Good relationship with people. लोगों के साथ अच्छे संबंध होना, Yes, that results in peace. वो उसका जो परिणाम है वो शांति हो सकता है। Good relationship with God. परमेश्वर से अच्छा रिश्ता होना, If that is true in your life, then there will be peace for sure. अगर ये सच है आपकी जिंदगी में तो आपकी जिंदगी में शांति जरूर होगी। And then there's another definition: rest, quiet, or stillness in the heart. और इसकी एक और परिभाषा है कि आराम, शांति, स्थिरता और स्थिरता जीवन में होना। And the opposite of peace is all those things and noise. और शांति का विपरीत हर एक वो चीज है और शोर भी है। Because Satan does something, right? He creates noise. क्योंकि जो शैतान है, शत्रु है, वो आवाज बहुत बनाता है, वो शोर करता है। The reason why you have anxiety, half the reason is because you have to listen to different voices every day. और इस वजह से आपको बेचैनी और चिंता होती है कि आपको प्रतिदिन अलग अलग आवाजें, अलग अलग शोर सुनने पड़ते हैं। And you know what steals our peace? और आपको पता है कि हमारा शांति कौन चोरी कर लेता है? Eventually, it is fear. वो भय है, Fear of anything. किसी भी चीज का भय, Fear of being judged. अपने को जज होने का या फिर न्याय किए जाने का डर By people. दूसरे को द्वारा, Fear of not having enough as the other person. और एक दूसरे के मुताबिक उतना नहीं होना जितना एक दूसरे के पास है, उस चीज का डर, Fear of not being accepted. और स्वीकार ना होने का डर। And when did fear begun? और ये डर जो है शुरू कब से होता है? Anyone? When did fear begin? Who was the first one to be scared in the Bible? क्या आप बता सकते कि पवित्र शास्त्र में पहला शख्स कौन था जो डरा था? Right. So Adam and Eve were scared when they sinned. और आदम और हवा थे, वो डर चुके थे जब उन्होंने पाप किया And they hid themselves और उन्होंने खुद को छुपा लिया because they were scared. क्योंकि वो डर चुके थे। Hence, the relationship with God
there was something missing. और जो एक रिश्ता था, संबंध था परमेश्वर से, उसमें कुछ तो मिसिंग था, कुछ तो खो रहा था. And when we talk about sin, that means sin is the root cause why we do not have peace today. Am I wrong? और अगर हम बात करते हैं पाप की, तो पाप ही वो एक सबसे मेन जड़ है जिसकी वजह से हमारे पास शांति नहीं मिल पाती है. That is why God had to send His only begotten Son as इसी वजह से परमेश्वर को अपना इकलौता पुत्र भेजना पड़ा, to free us from that sin. ताकि हमें वो छुड़ा सके उस पाप से. And through that Son, उस बेटे के द्वारा, there is no fear, उसके द्वारा कोई डर नहीं है, there is no sin, कोई पाप नहीं है, there is perfection. वहाँ सिद्धता है. Not through us, हमारे द्वारा नहीं, but through Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा. So when God looks at us through the lens of Jesus Christ, He sees perfection and not our mistakes. और जब परमेश्वर जो है, जब खुदा हमारे को अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसके थ्रू देखता है, तो वो हमें एक सिर्फ देखता है, हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक्स नहीं देखता. Because our relationship with God has been restored through Him. क्योंकि जो हमारा संबंध है, हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो यीशु मसीह की वजह से दोबारा जुड़ चुका है. And there's somewhere in the Bible, I'm not sure about the reference, but it says He keeps them in perfect peace whose heart stays on Him. और मेरे को रेफरेंस और नहीं पता कि बाइबल में कहाँ लिखा है, लेकिन ऐसा जरूर लिखा है कि वो उनको पूरी शांति के साथ रखता है, जिनका जो हृदय है वो उससे जुड़ा रहता है. Right. ठीक We बात. have accepted Jesus. हमने यीशु मसीह को अपना लिया है, Why do you still fear? तो हम अभी भी क्यों डरते हैं? Why do you still fear? हम अभी भी क्यों डरते हैं? Why is there so much anxiety in us today? अभी भी हमारे अंदर इतनी बेचैनी, इतनी चिंता क्यों है? Why when someone just pulls the right string, you will punch that person on the face? और जब कोई आदमी आपकी एक वो तार खींच दे, आप उसको एक खींच के मुक्का मारने के वो हो जाते हैं. Why when just a little something is said to you, you shout? और जब कोई छोटी सी बात आपसे कह दी जाती है, आप चिल्लाने लगते हैं. I'm a part of it as well. मैं इसका एक हिस्सा हूँ. My family is like, preach to yourself first. And I'm like, yes. और मेरी परिवार सोच रहा हो कि पहले अपने आप को प्रचार करो इसका. Because yes, the Spirit of the God does not only minister to you, it does minister to me as I preach as well. और जो परमेश्वर का आत्मा है वो सिर्फ आपसे बातचीत नहीं करेगा, आपको नहीं सिखाएगा, बल्कि जब मैं आपको ये प्रचार कर रहा हूँ तो वो मेरे को भी इस चीज के लिए काटेगा. And last Sunday we read this verse. Sister Salome mentioned that God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and self-control. और आखिरी इतवार को सिस्टर सलोमी ने जैसे प्रचार किया था और उन्हें वचन बताया था कि परमेश्वर ने हमें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि प्रेम का, संयम का और धीरज का, और धीरज का आत्मा दिया है. सामर्थ का, सामर्थ का, प्रेम का और धीरज का. सामर्थ का, प्रेम का और धीरज का आत्मा दिया है. So why are you still afraid? तो आज भी हम क्यों डरते हैं? Is Jesus not enough? क्या परमेश्वर यीशु मसीह काफी नहीं है? There is one reason. Can anyone? I want to interact with you all. मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ Why are we still afraid? Is anyone today who does not have some kind of fear? कि यहाँ आज कोई है जिसको किसी भी चीज का भय या किसी चीज का भय नहीं होगा. That's true. ये सच्चाई है. And there's one reason. सिर्फ एक ही इसका कारण हो सकता है. Yes, we are born new again in the spirit, हाँ, हम आत्मा में दोबारा जिलाए गए हैं, but that spirit is kept in a body for the moment. पर वो जो आत्मा है वो इस शरीर में, इस देह में रखी हुई है. Romans 7:15. If someone can read it in Hindi as well, I'll read it in English for till then. And it says, "I do not understand what I do." This is what Paul says. "For what I want to do, I do not, but what I hate to do, I do." रोमियो 7:15 कोई हिंदी में पढ़ दीजिए. जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ. So, if Paul, being such a strong apostle, और पौलुस एक इतना बड़े और इतने मजबूत एक इतने बड़े प्रेरित, पौलुस इतने बड़े प्रेरित होने के बाद, if he could go through something like that, अगर वो किसी ऐसी चीज से, ऐसी समस्या से होकर गुजर सकते हैं, who had experienced Jesus in such amazing ways, जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया है बहुत ही अद्भुत तरीकों से, then who are we? तो हम कौन है फिर? Who are we? हम कौन हैं? The only answer to that, what I found, इसका सिर्फ एक जवाब जो मेरे को मिला was humanity. वो थी इंसानियत. We humans. हम इंसान हैं. And
the spirit does war against the flesh every day. और जो हमारी आत्मा है वो हमारे शरीर से एक जंग लड़ती है हर रोज। Until the time that war is on, you are in good hands. Don't worry. और जब तक वो जंग चल रही है आप सही हाथों में हैं। But remember, आप याद रखिएगा, if there is that kind of peace where there is no war against the flesh, और अगर एक ऐसी शांति आ गई है जिसमें आपके शरीर के और आपके आत्मा के बीच में वो जंग नहीं है, that is not true peace. वो एक अच्छी और एक सच्ची शांति नहीं है। This is where we need to check our lives. ये वो समय है जब हमें अपनी जिंदगियों को, अपने जीवन को चेक करना है। Look, maybe our lives are not going right. As Brother Joel said, there are ups and downs in our lives. जैसे ब्रदर जोएल ने कहा कि हमारी जिंदगी सही नहीं जा रही है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है। But it is a choice for us to either love God or the world, because it's either God or the world. There is no in between. और हमारे लिए ये एक ऑप्शन है, एक चॉइस है कि या तो हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं या फिर अपने इस देश से प्यार कर सकते हैं, दुनिया से प्यार कर सकते हैं। दोनों के बीच में कुछ और नहीं। दोनों के बीच में कुछ और नहीं है। It's a choice if you want to live according to the spirit or do we want to live according to the world or our flesh. या तो हम अपने आत्मा के द्वारा जी सकते हैं या फिर अपने शरीर या फिर इस दुनिया के द्वारा के साथ। Do you know love is a choice and not a feeling? क्या आप जानते हैं कि प्रेम एक विकल्प है और चुनाव है और एक भावना नहीं है। Half the world, Hollywood has destroyed the meaning of love. I'm sorry. और ये जो हॉलीवुड है इसने प्यार का जो मतलब है वो खराब कर दिया है। It's gone. ये जा चुका है। Love is not just a feeling. जो प्यार है, प्रेम है, वो एक भावना नहीं है सिर्फ। Even when you're in a relationship, a marital relationship, अगर आप एक शादीशुदा संबंध में हैं, रिश्ते में हैं, after maybe a month, a year, I don't know, there does come a time when that feeling starts to give in. और एक महीना या फिर कुछ समय बाद एक समय आता है जब वो एक भावनाएं जो है वो आने लगती हैं। How are you thinking? How does he know that he's not even married? और आप सोच रहे होंगे ये कैसे बोल रहा है, तो शादीशुदा भी नहीं है। Yeah, but there's something known as study. और कुछ चीज़ है जिसे पढ़ाई कहते हैं। So yes, God did help me with some things. So I want to share with मेरी you. मदद करी है कुछ चीजों में, So I want to share with you. उसी वजह से मैं आपके साथ भी इसे बांटना चाहता हूँ। And the same way, you have to work that relationship out. और उसी तरीके से आपको वो जो एक रिलेशनशिप है, संबंध है, उसे चलाना पड़ता है। Because without true love, there is nothing. No matter how beautiful a person is, you will fall out of feelings, I'm sure. और बिना प्यार के चाहे वो जो व्यक्ति है वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर वो एक भावना है, वो एक फीलिंग जो नहीं होंगी तो नहीं हो पाएगा। Because our body is looking for something different all the time. क्योंकि जो हमारा शरीर है वो किसी अलग चीज के लिए हमेशा लगा रहता है, हमेशा अलग चीज खोजता रहता है। So right now I would not like to go into that. अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। But let's come back to God. Come back to this topic that love is a choice. और इस चीज पे वापस आते हैं कि जो प्रेम है वो एक विकल्प है। Love is a decision. चुनाव, एक निर्णय है। Love is a decision. जो प्रेम है वो एक निर्णय है। And today you can choose either to listen to the noise of the world. और आज आप ये चीज जो है इस चीज का निर्णय कर सकते हैं कि आपने जो इस संसार की शोर सुनना है, All the lies of the world. इस पूरे संसार के झूठ सुनने हैं, The false standards of the world. जो झूठे स्टैंडर्ड्स हैं, झूठे तौर तरीके हैं, वो सुनने हैं। Which I'll be talking in detail about a little later. थोड़ी देर में हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। Or you can choose to know the truth and declare His promises every day. और आप चाहे तो जो है सच्चाई को चुन सकते हैं और उसके जो वायदे हैं उनको आप प्रतिदिन बोल सकते हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं। You got to read His word every day. आपको उसका वचन डेली हर दिन पढ़ना पड़ेगा। In the beginning, I did mention, a good relationship with God leads to peace. और मैंने ऐसे शुरुआत में बताया था कि परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता जो है वो शांति की तरफ आपको लेके चलता है। Because the noise of the world, it numbs our trust. क्योंकि जो संसार का शोर है वो हमारे विश्वास को नम कर देता है, कम कर देता है, सुन कर देता है। And when we trust, all those chains, they're broken. और जब हम विश्वास करते हैं वो सारी बेड़ियां, वो सारी जंजीरें जो है वो टूट जाती हैं। So salvation is something which needs to be worked every day so that we can know our Creator more. तो सैल्वेशन जो उद्धार जो है वो कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हमें प्रतिदिन कार्य करना है।
so that we can know our God more. तो जिससे हम अपने परमेश्वर को और ज्यादा जान पाएंगे, And the more you know your God, और जितना आप अपने परमेश्वर को जानेंगे, the more you will know your worth in Him. और उतनी आप खुद की काबिलियत को परमेश्वर में पहचान पाएंगे। Do you realize all the anxiety, all the frustration that you are facing is just because you just don't know yourself? क्या आप ये चीज मानते हैं कि जितनी भी आपको बेचैनी, जितनी भी आप लोगों को चिंता है, वो सिर्फ इस वजह से कि आप खुद में अपनी सामर्थ्य या फिर खुद में अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाते? The son or a daughter of a king knows what he desires, he will receive. एक राजा का पुत्र या पुत्री को पता है कि वो जो भी चीज की ख्वाहिश रखेगा वो पूरी हो जाएगी। I'm not talking if I want a beer bottle, I'll get it. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मेरे को एक शराब की बोतल चाहिए होगी तो मुझे मिल जाएगी। But the Bible says, according to His will, whatever you ask in Jesus' name, you will receive. पर पवित्र शास्त्र कहता है कि जो चीज तुम मांगोगे परमेश्वर के वचन की इच्छा में वो तुम्हें मिल जाएगी। Do you realize Jesus was not able to perform miracles at a place just because of the lack of their faith? क्या आपको पता है परमेश्वर एक जगह पर आश्चर्यकर्म नहीं कर पाए थे कि दूसरों के अविश्वास होने की वजह से? Just because of the noise. सिर्फ उस शोर की वजह से, Just because of the noise of unbelief. जो वो शोर है, अविश्वास का शोर है, Just because of that, Jesus was not able to perform a miracle there. उस वजह से परमेश्वर यीशु मसीह जो थे वो एक महाकाम नहीं कर पाए थे। The Bible says, if you believe, if you have a little faith, then you say to the mountain, go to the sea and perish. That will happen. और पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर आपके पास कम विश्वास भी है कि फिर भी आप अगर एक पहाड़ को कहेंगे कि तू समुद्र में जाके गिर जा तो वैसा हो जाएगा। So you need to have that faith. तो हमारे को वो विश्वास वो होना चाहिए। Faith and peace go hand in hand, right? तो शांति और विश्वास जो है वो हाथों हाथ चलते हैं। Because faith will be with you even in those circumstances where you do not really see something tangible. और जो विश्वास है वो तब आपके साथ होगा जब आपको कोई चीज जो है आपकी आंखों से दिखाई नहीं भी दे रही होगी, पर वो एक विश्वास रहेगा। And coming to noise, noise is the absolute word which is contradictory of peace. और जैसे शोर है वो पूरा एक विपरीत शब्द है शांति के। You know, chaos has noise. जो गड़बड़ी है उसमें शोर होता है। War has noise. जंग में शोर होता है। Anger has noise. गुस्से में शोर होता है। Restlessness has an inaudible noise in your mind. और जब आप थके हुए हैं, आप आराम नहीं कर पा रहे, तो आपके दिमाग में एक अलग तरीके का शोर होता है। Anxiety, people speaking negatively to you. जब आपको चिंता है, बेचैनी है, तब एक शोर होता है कि लोग आपके बारे में गलत और बुरा कह रहे हैं। Everything has a noise. हर एक चीज का एक शोर होता है। Satan is the creator of that noise. और जो शैतान है वो उस शोर का बनाने वाला है, रचने वाला है। Because when we say sin is the root of fear, और जब हम कहते हैं कि पाप जो है वो भय का जड़ है, then Satan is the one through whom sin came. तो शैतान वो है जिसकी वजह से जो है पाप आया है। And we listen to all these noises every day in our lives. और हम प्रतिदिन अपने जीवन में ऐसी जो शोर है वो सुनते रहते हैं। You follow a celebrity and you really want to be like a celebrity who himself would be miserable if he didn't get attention. और हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो सेलिब्रिटीज है, स्टार्स है, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, बट वही लोग हैं जो खुद बहुत बुरी हालत में आ जाएंगे अगर उनको वो अटेंशन या फिर वो उन्हें वो एक स्टैंडर्ड नहीं मिला। If a celebrity, for example, has 2 million likes on the previous post, he would expect at least 2 million likes on the other as well. और अगर एक कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्टार है जिसकी एक फोटो पे 2 या 3 लाख लाइक्स आए हैं, तो वो ये चीज सोचेगा या फिर ये चीज मांगेगा कि उसकी अगली फोटो पे उससे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। And just because people's approval, it's your approval that is validating that person. और ये जो हमारा ही हाँ है, हमारी ही बात है जो उसके उस चीज को और सच बना रहा है, Approve कर रहा है, साबित कर रहा है उसकी बात को। Then do you really think it's worth following that person? क्या आप जरूर ये चीज सोचते हैं कि क्या ये जरूरी है ऐसे कि शख्स को फॉलो करना? There are various standards, right? आज बहुत standards हैं। आजकल अलग अलग मापदंड आ चुके हैं। The standard of fame, एक popularity, प्रसिद्ध होने की स्टैंडर्ड, beauty standards. Wow. सुंदर होने का मापदंड। I can talk about this all day. मैं पूरा दिन इसके बारे में बात कर सकता हूँ। But we're talking about peace, so let's be a little peaceful. हम
शांति के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शांतिपूर्वक बात करते हैं। Dressing standard. कपड़े पहनने का मापदंड। There are many things. I cannot enumerate all of them at this moment. मैं सब तो इस मोमेंट में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। And do you know, Satan is literally ruling over some industries which I will name and many other. और जो शैतान है वो राज्य कर रहा है ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज पे जिनका मैं भी नाम लूंगा। I request you to please stand up and tell me if I'm wrong. अगर मैं गलत हूँ तो अपनी जगह पे खड़े होकर मुझे कह सकते हैं। Satan is ruling over Hollywood, over film industry in और general. जो शैतान है वो इस फिल्म इंडस्ट्री का जो है उस पे राज्य कर रहा है। He's ruling the fashion industry. जो कपड़ों का फैशन का इंडस्ट्री है उस पे शैतान जो है राज कर रहा है। He's ruling the music industry. जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, गानों की इंडस्ट्री है, उस पे शैतान राज कर रहा है। And many more things. और भी बहुत सारी हैं। Don't get me started. Social media. तो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उस पे शैतान राज्य कर रहा है। This aggravates me. I don't have peace right now. I'm sorry. मेरे अभी शांति नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। But I'd like to take it with a smile. अरे मैं मुस्कुराते हुए बोलना चाहूंगा। The music that we listen to, I remember Brother Wongani mentioning last Sunday. और ब्रदर वंगानी ने लास्ट संडे ये चीज बताई थी। The music that we listen to really has a powerful impact over us. जो गाने हम सुनते हैं उनका एक बहुत ही गहरे बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। Because in amazing, you know, in a beautiful tone, Satan will give you something that will destroy you forever. क्योंकि बहुत ही मधुर सी गीत में, बहुत ही मधुर सी आवाज में शैतान तुम्हें कुछ ऐसा देगा जो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए तबाह कर सकता है। You listen to songs about cars. आप गाड़ियों के बारे में गाने सुनते हैं? Yeah, I have my Apple iPhone, I have my car and whatever. Punjabi especially, right? और पंजाबी गानों में अगर हम देखा जाए तो मेरे पास मेरा एप्पल का फोन है, मेरे पास गाड़ी है। I'm speaking facts. I'm not against Punjabi. No. मैं पंजाबियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो सच है वो कह रहा हूँ। Because in Punjabi music, I see a lot of cars, you know, showing off. क्योंकि पंजाबी म्यूजिक में जो होता है मेरे को बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती है, उनको लोग शो ऑफ कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। And it's not only in Punjabi music; it's basically everywhere. और ये सिर्फ पंजाबी म्यूजिक में नहीं है, हर जगह ही ऐसा होता है। And next time you see an iPhone with someone, और अगली बार अगर किसी के हाथ में आपको आईफोन दिखे, won't you want that as well? क्या आपको भी वो चीज चाहिए नहीं होगी? Because isn't that the same thing which is repeating in your playlist again and again? क्योंकि वो एक चीज है जो आपके गानों के लिस्ट में वो ऊपर नीचे घूमे जा रहा है। Because if an iPhone is something that validates you, क्योंकि अगर एक ऐसा आईफोन है जो आपको वो आपकी महत्व को बढ़ाता है। अगर एक आईफोन आपके महत्व को बढ़ाता है, so then you will break when the iPhone does. तो जिस दिन तुम्हारा आईफोन टूटेगा तुम भी टूट जाओगे। You will expire when your SIM does. तुम एक्सपायर हो जाओगे जब तुम्हारे आईफोन का सिम एक्सपायर हो जाएगा। Right, but we sang today that Christ is the firm foundation, and you know my house was built on that rock, and I was not shaken. और जैसे हम आज हमने गाया कि परमेश्वर जो है मेरा एक बुनियाद है मेरी, और जो बारिशों पे मेरे जो घर है उसी चट्टान पे बना है और वो नहीं हिलेगा। And this is why we don't have peace. और इसी वजह से हमारे पास शांति नहीं होती है। Why we are not content? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है। The Bible says, "Do not covet your neighbor's wife, your neighbor's things, whatever." Wife, I remembered. I don't know why. और वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से किसी चीज का लालच मत करना। हाँ, पड़ोसी की किसी चीज का लालच या उसकी पत्नी का किसी चीज का उसकी पत्नी का या फिर किसी भी चीज की लालच मत करना। Yeah. Because when we do that, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं we push away our own blessings. हम अपनी खुद की आशीषों को दूर कर देते हैं, धक्का Do दे you know देते हैं। God has something for you, and that something is only for you. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है, वो सिर्फ हमारे लिए ही है। He will not deliver your package to someone else's house. वो हमारा जो ब्लेसिंग्स है, हमारे कोई जो पैकेज है वो किसी और के घर पे नहीं देगा। And if you're getting restless right now, just have peace knowing that. और अगर अभी आप चिंतित हैं तो आप ये चीज मान लीजिए कि बस ये जान के शांति कर लीजिए। तो ये चीज जान के शांति कर लीजिए कि वो जो आपका पैकेज है वो आप ही को मिलेगा। You know, we live off of people's validation. हम लोगों की बातों पे, लोगों की स्वीकृति पे बहुत जीते हैं। We compare ourselves to each other. हम अपने को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। But least do we know that our battles are not against flesh and blood. This is what the Bible says. और हम बहुत कम इस बारे में जानते हैं कि जो हमारे युद्ध है, हमारी जो जंग है वो
मांस और लहू से नहीं है। The Bible says we do not fight against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Can someone read Ephesians 6:12 in Hindi, please? इफिसियों की पत्री 6:12 को हिंदी में। क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। You know, sometimes we tend to fight these battles in our flesh. We tend to do things, this and that, whatever. काफी समय होता है कि ये जो हमारी जंग है ये हम खुद अपने लहू और मांस से लड़ने लगते हैं। You know, we throw our fists around everywhere possible. हम अपने हाथ पैर चलाने लगते हैं जैसे भी हो सके। Sometimes it may result in physical fist fights as well. और ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी ये हाथ तापाई में भी चीज जो है बदल जाए। Because when we operate in our flesh, we need to hurry. We want something at that very moment. क्योंकि जब हम अपने शरीर को से लेके चलते हैं, शरीर की बात से चलते हैं, तो हमें उसी समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है। Because so many noises, hey, why don't you have this? You must have this, right? क्योंकि बहुत सारा शोर जो होता है हमें सुनाई दे रहा होता है कि तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम्हारे पास ये होना चाहिए। Hey, you're not good enough. You don't have something. You're not even good enough. तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। You look like that. You're not good enough. तुम ऐसे दिखते हो तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। Obey, you're short. You're not good enough. उबेद तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। You want to believe that? क्या आप उस चीज को मानना चाहते हैं? Because you have a choice. क्योंकि हमारे पास जो है विकल्प है, Or you can take it to the spiritual realm. और हम इस चीज को जो है आत्मिक क्षेत्र में लेके जा सकते हैं। I want you to know one thing. मैं आपको सिर्फ एक ही चीज आपको चाहता हूँ कि एक ही चीज जाने आप। You know, this mic, क्या आप इस माइक को जानते हैं? let's take this cord, okay? इस कॉर्ड को लेते हैं। The cord from here to here is your life on this planet. यहाँ से नीचे तक लेके जो कॉर्ड है ये आपका आयु है, आपकी जीवन है इस धरती पे। This much. इतनी सी बिल्कुल Smaller than me. ओबे से छोटी। And the entire cord from here connecting to there is your eternal life. और जो पूरी की पूरी कॉर्ड है जो यहाँ से पूरे म्यूजिक सिस्टम में जुड़ रही है वो तुम्हारा आत्मिक जीवन है, आनंद जीवन है। And trust me, this cord is limited, but eternal life is unlimited. It's और ये जो है ये फिर भी सीमित है, लेकिन जो हमारी अनंत जीवन है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। and when we know that, और जब हम ये चीज जानते हैं itself there is peace. तो वहाँ पे एक शांति है, Because we do not fight against flesh and blood only. क्योंकि हम सिर्फ शरीर और लहू से या मांस और लहू से नहीं लड़ते। Remember, we need to go back to the one who created what he designed for you. जो उसने हमारे लिए बनाया हम उसकी चाहत रखें। जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया हम उसकी चाहत रखें। और उसके पास जाएं जिसने उस चीज को हमारे लिए बनाया। And we go to him who has made that thing for us. I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। We trust men a lot. हम आदमियों पे बहुत भरोसा करते हैं। I mean, even women. I mean, औरतों पे men in, humans in general. हम लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं। And you know, we trust their words. We listen to the noise. हम जो है शोर को सुनते हैं, उनके वचनों पे विश्वास करते हैं। And I am not boasting when I'm saying this. और ये चीज मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। My mom the other day she said, you know, there was someone who was stealing her, the electricity of their house for a while, and around 20,000 rupees loss was incurred to them. और मैं अपने मम्मा के बारे में बताता हूँ। उनके घर पे कोई था जो उनकी बिजली चोरी कर रहा था और जिसकी वजह से उनको ऑलमोस्ट 20,000 रुपए तक का जो है नुकसान हो गया था। And that person came and he was caught doing that. He started to misbehave with them. और जब वो शख्स जो है वो व्यक्ति पकड़ा गया तो वो उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था। And my aunt said, okay, you got to now give us all that money. और मेरी जो आंटी है उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी मेरे को वो सारे पैसे देने होंगे। First you steal and then you want to misbehave as well. पहले तो तुमने चोरी करी और अब तुम गलत दुर्व्यवहार भी कर रहे हो। And then what happened? The landlord, he called his sons. They also misbehaved with my mother and my aunt. और जो मकान मालिक था उसने अपने बेटों को बुलाया, फिर उन्होंने भी मेरी मम्मा और मेरी आंटी से बदतमीजी से बात करी। And they were tensed. और वो लोग चिंता में थे। My mom couldn't sleep at night. मेरी मम्मा रात को सो नहीं पाई। I remember talking to her one day. और एक दिन मैं को याद है मैं अपनी मम्मा से बात कर रहा था। And she said, Obed, he will not return our money back. और उन्होंने बोला कि उबेद वो मैं अपने हारे पैसे नहीं देगा वापस। I said, why? और मैंने बोला क्यों?
She said because he said that. क्योंकि उसने, और मम्मा ने पूछा क्यों, और मम्मा ने बोला क्योंकि उसने ये चीज बोली मेरे को। He said that, so he will not give it back for sure. उसने ये चीज बोली है तो वो पैसे नहीं देगा बिल्कुल वापस। I don't know where God gave me that faith from that time. मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने मेरे को वो विश्वास कैसे दिया उस समय। But I said, Mom, do you really believe the words of men? क्या आप, मैंने मम्मा से पूछा कि क्या आप सही में उस आदमी के बातों पे विश्वास करते हो? Isn't God the one who hardens and softens the heart? ये परमेश्वर नहीं है जो एक दिल को पत्थर या फिर नरम करता है? And the next day they were tense, and next day or whenever they were tense, and I told them, stop fighting in the, stop rebelling against it. और मैंने अगले दिन उनको ये भी बोला, वो टेंशन में थे, कि इसके खिलाफ बलवा मत करिए। Let it happen. Whatever happens, let it happen. You just pray. जो हो रहा है होने दीजिए, आप बस प्रार्थना कीजिए। I just said that, and immediately after that I got down to pray for them. I opened the Bible and there was such a relevant verse which I will not share now, and God spoke to them. एंड मैंने यही बात करी, फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा, और मेरे को एक ऐसा वचन मिला जो बिल्कुल उनके लिए था। मैं उनको भी नहीं, आपको वचन नहीं बताऊंगा, बट उनको मैंने इसे बताया। And what happened was they prayed about it and they were much peaceful. और उन्होंने उसके बारे में प्रार्थना करी और वो काफी ज्यादा शांति में थे उस बात And में। you know, sometimes we just like this, we want to solve things in our flesh, right? I will speak to that person and he will give my money back. और ऐसी बहुत समय होता है कि हम काफी चीजें अपने समय के अकॉर्डिंगली वो मांस और लहू से उस चीज को लेकर लड़ने लगते हैं। We often forget there is a greater authority that we have. और हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमारे पास उससे बड़ी एक अथॉरिटी है। Have you been rejected? क्या आप कभी तिरस्कार करे गए हो? Do you realize that man's rejection is not final? क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य से तिरस्कार अंतिम तिरस्कार नहीं। हाँ, एक मनुष्य का तिरस्कार अंतिम तिरस्कार नहीं है। Because God is the one who hardens and softens the heart as well. जो परमेश्वर है वही दिल को कठोर और नरम करता है। Because yesterday I received a call. They were very peaceful yesterday. और कल मेरे को फोन आया और वो लोग काफी शांति से थे। And so was I, because I had just finished with writing. और मैं भी था क्योंकि मैंने पूरा लिख लिया था ये। And I said I'm very peaceful at this moment. और मैंने बोला मैं बहुत शांति में हूँ। And they said we are as well. और उन्होंने बोला कि हम भी हैं। Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? That person who was very stern agreed to pay them what he had stolen. और वो जो शख्स था जिसने वो चीज देने से मना कर दिया था, उन्होंने अब मान ली थी बात की वो जो चीज उन्होंने चुराई है जो बिजली, उसके वो पैसे उन्हें देंगे। Sometimes you agree to what the others have told you. कभी बहुत समय ये होता है कि हम वो चीज मान लेते हैं कि जो हमसे दूसरे व्यक्ति ने जो चीज कही है। You've heard so many voices that even if someone praises you, you will not listen to them. हमने इतने शोर, इतनी आवाजें सुन ली है कि कोई हमारी तारीफ भी करे तो हम नहीं समझते हैं। But you listen very carefully to all those negative words which someone has said to you. पर हम उस बुरे या फिर उस नकारात्मक शब्दों को बहुत अच्छे से सुनते हैं जो कोई हमारे खिलाफ बोल रहा हो। To a human, वो भी एक मनुष्य के लिए, another human. एक दूसरे मनुष्य के लिए। Do you know who you are? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? Tell me. बताइए। Who are you? आप कौन हैं? You're a child of the living God. हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। And you just did not become a child. He paid a heavy price for you. और आप सिर्फ उसके पुत्र या पुत्री नहीं बन गए, उसने काफी बड़ी कीमत इसके लिए चुकाई है। Don't you know that He also cares about your bodies? क्या आप नहीं जानते कि वो भी आपके शरीर के लिए चिंता करता है? And don't you know that whatever you need, He will provide? और आप ये क्यों नहीं जानते कि जो चीजें आपको चाहिए वो आपको मुहैया करके देगा? But there's just one thing that He asks of you, right? सिर्फ एक चीज है जो वो हमसे मांगता है And He says, seek first the kingdom and righteousness, कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, and then all these things will be added unto और ये you. सारी चीजें फिर जोड़ दी जाएंगी। It's that simple. ये इतना आसान है। If you stop thinking about only the worldly things and see the bigger picture of eternity as well, अगर आप सिर्फ वो शारीरिक या फिर संसारिक चीजों छोड़ के अपने अनंत जीवन के बारे में एक बड़ी जो तस्वीर है उसको देखें, it is then when you will have peace, knowing what God is doing in your life. ये तब होगा जब आपके पास शांति होगी, आपको पता होगा कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या कर रहे हैं। Yes, God does care about your spirit. He does care about your flesh and soul as well. और परमेश्वर आपके आत्मा को और आपके शरीर के दोनों की चिंता करता है। You know, when you, as a child of God, परमेश्वर के बच्चा होने के लिए when you ask God some things, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, maybe He will answer you immediately. हो सकता है कि आपको वो उसी समय उत्तर या उसका जवाब दे दे And we are very happy. और हम बहुत खुश होंगे। Maybe He says no.
क्या पता वो नो ना जवाब हो, but then He does give us something better. पर हमें उससे भी कुछ अद्भुत चीज मिल जाती है, And that's for sure. Trust me. और वो चीज बिल्कुल सत्य है। God विश्वास will, रखिए, God will and He always does. परमेश्वर करता है, वो हमेशा करेगा। But no, it's better for you. पर जब हमारे लिए वो चीज बेटर होगी, सही होगी। And there are times when He asks us to wait. और बहुत सारे समय होते हैं जब वो चाहता है कि हम धीरज रखें, हम इंतजार करें। And you may be praying, but it may seem like there is silence. आप प्रार्थना तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक सन्नाटा है। And I think this is the only silence where there is no peace. और शायद से मेरे को लगता है कि ये एक वैसा सन्नाटा है जहाँ कोई शांति नहीं होती, Because in the waiting, we tend to create voices of our own. क्योंकि जब हम इंतजार कर रहे होते हैं, हम खुद का एक शोर, खुद की एक आवाजें जो है वो बनाने लग जाते The हैं। sound of frustration, एक चिंता का, बेचैनी की आवाज, the sound of anxiety, चिंता की आवाज, बेचैनी की आवाज, the sound of a broken chair, I don't know, एक टूटी हुई कुर्सी की आवाज, broken glass, एक टूटे हुए ग्लास की आवाज। out of frustration, right? चिंता में, अपनी बेचैनी में हम ऐसा कर देते हैं, Maybe your own fist. अपना खुद का एक मुक्का मार सकते हैं। I've done that. मैंने ये चीज करी है, Thankfully, it wasn't broken. अच्छा हुआ नहीं टूटा मेरा हाथ, But I have punched things in my life. पर मैंने अपने जीवन में चीजों को मुक्का मारा है। Because when God asks us to wait, we get impatient. क्योंकि जब हमें परमेश्वर इंतजार करने को कहता है तो हम अपना धीरज खो देते हैं। Because in that silence, we have all these noises and our own noises, and we are overwhelmed. और उस सन्नाटे में क्या होता है, एक काफी सारी आवाजें होती है, हमारी खुद की आवाजें हमने बना रखी होती है, और हम बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। But know that this is the time God is developing something in your spirit. ये चीज जान लीजिए कि परमेश्वर इसी समय में आपके आत्मा में कोई चीज जो है वो उत्पन्न कर रहा है। And the longer you crib, the longer it will take. और जितना ज्यादा आप रोएंगे उस चीज को लेके, उतना ज्यादा आपको इंतजार करना पड़ेगा। When you surrender yourself to God's correction, जब अपने आप को परमेश्वर की हाथों में सौंप देते हैं, ताकि उसके सुधार के लिए उसको अपने आप को अपने सुधार के लिए परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, for His time of development in your life, ताकि उसके समय से आपके जो जीवन में है वो विकास हो सके, then you will receive what God has for you, and it will be the most satisfying thing to you. तब आप उस चीज को पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी होगी, और वो आपके लिए सबसे ज्यादा संतुष्टि की चीज होगी। For example, उदाहरण के तौर पर we have the youth here, right? हमारे यहाँ पे बहुत सारे जवान हैं। You're praying for a life partner, आप लोग अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, and you can just not wait for God to answer. और आप इंतजार ही नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के जवाब का। And then you go see someone at the club, और आप एक क्लब जाते हैं और वहाँ पे किसी को देखते हैं, and maybe you won't even see them again. और हो सकता है कि आप दोबारा इनको देखें भी ना, But you know what happens next. और आपको पता है उसके बाद क्या होता है। Will that satisfy you? क्या ये चीज आपको संतुष्ट कर पाएगा? It is only what God gives you that will satisfy you. जो है परमेश्वर जो आपको देता है, सिर्फ वही आपको चीज संतुष्ट कर पाएगी। Have peace knowing that. इस चीज को जानते हुए अपने अंदर एक शांति रखिए। There was a pastor whom I was listening to. He mentioned, he said that when I was going through trials, I had all this bitterness. और एक पासवान थे जिनको मैं सुन रहा था, जिन्होंने ऐसे कहा, जब मैं कठिनाइयों से होकर गुजर रहा था तो मेरे अंदर सिर्फ कड़वाहट थी। And I said, God, this was never in me earlier. It's just because of my circumstances that I'm so bitter. और मैंने ऐसा कहता था कि परमेश्वर पहले मेरे अंदर ये कड़वाहट नहीं होती थी, ये सिर्फ इस परिस्थितियों की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया है। And he said that the Holy Spirit spoke to me. और उसने ये कहा कि परमेश्वर की जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसने मुझसे बातचीत He करी said, what's that in your hand? कि तुम्हारे हाथ में क्या है ये? He said, God, it's a ring. और मैंने कहा परमेश्वर ये एक अंगूठी है। मैंने उसने उन pastor ने. पास्टर ने कहा कि ये अंगूठी है। And he said, what is it made up of? एंड वो पवित्र आत्मा ने कहा ये किस चीज से बनी हुई है? And he said, 14 karat gold. और पासवान ने कहा कि 14 कैरेट सोने से बनी है। That means 14 parts are gold, but the rest 10 are impurities. और जिसका मतलब होता है कि 14 हिस्से जो है वो प्योर गोल्ड के हैं, बाकी के जो 10 हिस्से हैं उसमें मिलावट है। So he said, when you melt it, what will happen? तो उन्होंने कहा कि जब आप इसे मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? So the Holy Spirit made him realize that all the impurities, because they are lighter, they will rise up, and the gold, because it's heavier, will go down. और पवित्र आत्मा ने उनको ये चीज समझाई कि जब आप इन्हें मेल्ट करेंगे तो जो उसमें गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी, और जो सोना होगा सही वो नीचे बैठ जाएगा। So God asked him, did you see those impurities earlier? और परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तूने क्या ये पहले जो गंदगी थी ये देखी थी? He said, no. उन्होंने बोला नहीं। But do you now see them?
पर क्या तुम अब इन्हें देख रहे हो? That means they were there all this while, right? तो इसका मतलब है कि पहले से थी। So in these times, God is developing something in us. He wants to take away the bitterness. Don't stop Him from doing that. और ये वो समय है कि परमेश्वर हमारे अंदर किसी चीज का विकास कर रहे हैं, वो जो एक कड़वाहट है वो हमारे अंदर से निकालना चाहते हैं। He wants to develop patience. Don't stop Him from doing that. और जब परमेश्वर जो हमारे अंदर धैर्य का विकास करना चाहते हैं तो उसको इस चीज से ना रोके। He wants to develop more trust in you. Don't stop Him from doing that. परमेश्वर हमारे अंदर और ज्यादा विश्वास का जो है विकास करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर को इस चीज से नहीं रोकना है। And I assure you that God's hand is not shortened, but it's just that some things are necessary to wait for. और इस चीज का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि परमेश्वर का जो हाथ है वो छोटा नहीं है, लेकिन हमें किस चीजों के लिए इंतजार करना है। So don't create your own noises. अपने खुद का शोर ना बनाएं। Don't create, because you already have so many noises to listen to, right? पहले से ही इतना ज्यादा शोर है तो खुद से शोर ना बनाएं। How much do you want to beat yourself up? खुद को हम कितना हराना, कितना मारना चाहते हैं? Because it will lead to nothing. क्योंकि ये किसी भी चीज की तरफ नहीं लेके You know, जाएगा। worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it takes you nowhere. डर करना या फिर डरना या फिर किसी भी चीज के लिए चिंता लेना एक उस चेयर के जैसे है जिसमें हम आगे पीछे तो हो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। So stop worrying. तो डरना, भय करना छोड़ दीजिए। Eliminate those sounds. वो जो आवाजें हैं उनको कम कर दीजिए, हटा But दीजिए। I realized when in the midst of silence, when the silence can get so loud that it's almost like a noise. और उस सन्नाटे के बीच में जब वो सन्नाटा इतना तेज हो जाता है कि वो एक शोर बन जाता है, Then there has to be a type of sound which can even silence that noise. तो उस समय एक ऐसी आवाज भी होनी चाहिए जो उस सन्नाटे को भी कम कर सके या खत्म कर सके। And there's a really bad noise which you can make in those times. और एक बहुत ही बुरी आवाज है जो आप उस समय बना सकते It's हैं, ugly. बहुत ही बदसूरत है। You want to know what that is? क्या आप जानते हैं वो क्या है? And that noise can help you get that peace back and give you that stillness in वो your heart. शोर है जो आपकी मदद कर सकता है आपकी शांति आप तक वापस आने में। Many times in the book of Psalms and in the Bible, many a times it says that people have cried unto the Lord. और बहुत ही समय पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि लोगों ने आंसू बहाए हैं, लोग रोए हैं। Is crying a very pleasant sound, क्या रोना बहुत ही एक अच्छी आवाज है, but it's still noise, right? पर ये सिर्फ ये शोर तो फिर भी है। And you know what? This noise, और आप जानते हैं कि ये जो आवाज है, ये जो शोर है, this is not only noise to our ears. This is noise to the principalities and the powers of hell. और ये जो रोना है, इसकी जो आवाज है सिर्फ हमारे लिए ये शोर नहीं है, लेकिन जो अधोलोक की जो अधिकार है, जो अधिकार है, जो अधिकारी हैं अधोलोक के हैं, ये उन लोगों के लिए भी एक शोर है। You can praise God. हम परमेश्वर की तारीफ कर You सकते can हैं, thank God. हम परमेश्वर का धन्यवाद कर You सकते can हैं। silently lift your hands up sometimes. आप शांति से अपने हाथ ऊपर उठा सकते हैं। कभी Lifting up your hands is not a noise, अपने हाथ ऊपर उठाना कोई शोर नहीं है, but it is a noise for Satan. पर ये शैतान के लिए जरूर एक शोर Because when है। you start doing that, क्योंकि जब आप ये चीज करने लगते and हैं when you don't have anything to do, you at least cry out to the Lord. और जब आपके पास कुछ नहीं है करने को, आप परमेश्वर को रो रहे होते परमेश्वर की तरफ, That is when God comes through for you. तब है परमेश्वर आपके लिए उतर के आते Do हैं। you remember Paul and Silas? क्या आप पौल और सिलास को जानते हैं? They were held captive. उनको बंदी में बना रखा था, But what they did was they praised God. उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की तारीफ करी, They praised God, उन्होंने परमेश्वर की तारीफ and the करी chains were broken. और उनकी जो जंजीरें थी वो टूट गई थी। And there may be the circumstance in your life where you may think it is over. There is nothing that can happen. I have no peace, nor can I ever get it. और ऐसी परिस्थितियां हो सकती है आपके जीवन में कि आप सोच रहे हो कि अब हो चुका है ना, मेरे को शांति मिल सकती है और कुछ नहीं हो सकता मेरा। There's just one thing that you can do. You can, instead of being angry, use those emotions to cry out to the Lord. और सिर्फ एक चीज है जो आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप गुस्सा हो, लेकिन वही जो आपके अंदर भावनाएं हैं उनको लेके आप परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। And I'm saying it again, cry out to the Lord for each and every situation where you see there is no hope. और कोई भी ऐसी जो परिस्थिति है जिसमें आपको लग रहा है कि आप बहुत नाकारक, आप कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो आप नहीं समझ पा रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के सामने रोइए। Speak God's promises to your परमेश्वर life. के वचन जो है वो अपने जीवन में लेके बोलिए। And when you cry out to the Lord, और जब आप परमेश्वर के लिए रोते हैं, just like your father cannot see your tears, God will not see your tears for long. जैसे हमारा शारीरिक पिता हमारे को रोते हुए नहीं देख सकता, तो हमारे आत्मिक पिता हमें रोते हुए कैसे देखेगा? Satan, you had me long enough. शैतान, तूने काफी समय से मेरे को अपने वश में रखा था। You made me listen to all the wrong voices long enough.
शैतान तुमने मेरे को वो सारी शोर सुनाया जो गलत था, but I will still choose to trust in my Lord. पर मैं अभी भी अपने परमेश्वर पे विश्वास रखूंगा। Yes, my hope was shaken, हाँ, मेरा जो विश्वास था वो हिल गया था, but guess what? पर अब क्या, My foundation is still the same. पर जो मेरी नींव है वो अभी भी वैसी ही वैसी है। Because guess where did I start to build? क्योंकि जैसे ही मैं बनने लगा, Where did I start to build? कहाँ से मैं बनने लगा? It was on the rock. क्योंकि ये उस चट्टान पे थी। I am not building on this world, Satan. मैं इस संसार पे नहीं बन रहा हूँ, Because I know if I build on it, you will make me fall. क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं इस संसार पे बनूंगा तो तुम मुझे गिरा दोगे। But if I build on Christ, no matter how many millions of demons you get, I will not be shaken. क्योंकि जब मैं परमेश्वर यीशु मसीह पे बना हूँ तो तुम जितने मर्जी शैतान, जितने मर्जी डीमंस मेरे खिलाफ भेज दो, मैं नहीं गिरूंगा। And I will have peace, and you can do nothing about it. और मेरे के अंदर एक शांति होगी और उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर And पाओगे। this is the peace that I will choose और today. ये वो एक पीस है जिसका मैं चुनाव करूंगा, वो एक शांति है। You know, in the Bible it says, in the end times there will be earthquakes, there will be chaos, there will be war. और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अंत के समय में एक शोर होगा, अर्थक्वेक्स होंगे, भूकंप आएंगे, But then there will be a greater sound of a trumpet which will silence everything. और एक तुरी फूकी जाएगी जिसकी उससे ज्यादा आवाज होगी जो हर एक चीज को चुप करा देगी। And for believers it will be the best sound. और हम विश्वासियों के लिए सबसे अच्छी आवाज होगी। Just the same way there may be noises of problems and health issues and anxiety going on in your life. हो सकता है कि हमारे जीवनों में शोर होगा, चिंता का, बीमारियों का और ऐसी बहुत सारी परेशानियों का, But just by one word of Jesus, everything can be silenced right now. परमेश्वर के एक वचन से हर एक चीज चुप हो सकती है अभी के अभी। It is your choice. If you want to believe, you can. If you don't want to believe, you will face millions of things every day. चुनाव आपके हाथ में, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो हो सकता है, नहीं तो लाखों चीजें हैं। I'm going to give you some verses मैं आपको कुछ वचन बताना चाहूंगा which God has promised to us. जो परमेश्वर ने हमारे साथ वायदे किए हैं। First one, Romans 8:28. पहला है रोमियो की पत्री 8:28। It says, "For all things work together for good for those who love God." और हर चीज भलाई उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Remember, even the trumpet will not sound good to those who do not love God. और ये चीज याद रखिए कि वो तुरी जो है वो उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। But when I am in Christ, पर जब मैं मसीह में हूँ, I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ। The old is gone. जो पुराना है वो जा चुका I है, am made new. मैं Hallelujah. नया बना दिया गया हूँ। And God is with me. और परमेश्वर मेरे संग है, And God is for me. और परमेश्वर मेरे लिए है, And He is not against me. और वो मेरे विरुद्ध में नहीं And है। if God is for me, अगर परमेश्वर मेरे लिए है, nothing can be against me. क्या ही मेरे विरुद्ध हो सकता है? If God is for me, अगर परमेश्वर मेरे लिए है the demons cannot be against me. तो शत्रु जो है वो मेरे विरुद्ध नहीं हो सकते। Yes, there are higher authorities of evil, हाँ, बड़ी अथॉरिटीज है दुष्ट की, but I have a higher authority whom I believe in. और मेरे पास एक उससे बड़ी अथॉरिटी है जिसपे मैं विश्वास रखता And हूँ। because I believe in Him, I know my worth today. क्योंकि मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, मेरे को आज मेरी पहचान है, And I will have peace knowing that. और मैं शांति में रहूंगा ये चीज जान के। Because I'm the son of a king, I'm a prince. क्योंकि मैं एक राजा का बेटा, मैं एक राजकुमार हूँ, And whatever I ask my daddy, He will give it to me. और जो कुछ मैं अपने पिता से मांगता हूँ वो मुझे देगा। It may not be now, हो सकता है वो आज ना हो, because the Bible says man shall not live by bread alone. This is what Jesus said. क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि एक इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, But man shall live by every word that comes out of the mouth of the living God. और परमेश्वर ये भी कहता है कि इंसान उस हर वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुंह से आता है। So Satan, maybe I am caught up in some problem right now, हाँ, तो शैतान हो सकता है कि मैं किसी ना किसी समस्या में भी फंसा हुआ but I हूँ, will still choose to believe. पर मैं अभी भी इसी चीज पे विश्वास रखूंगा और मैं इसी चीज को विकल्प को लूंगा। And wait, Satan, I'm not going to look at you. I'm not going to look at God now, और शैतान, मैं तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता, मैं परमेश्वर की तरफ देखूंगा, because God is my creator. क्योंकि परमेश्वर मेरा बनाने वाला, रचने वाला है। He knows what is the best for me. वो जानता है मेरे लिए क्या सही है, And without Him, there is no peace. और बिना परमेश्वर के कोई शांति नहीं है। Glory be to God. May God bless you all. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you, Lord. There is peace only with God through Christ Jesus. Hallelujah. केवल परमेश्वर में और यीशु मसीह के द्वारा ही शांति है. Hallelujah. We know that we go through so many times, so many things that makes us restless.
And I always say life is a battlefield. We will never have an end of the wars that we face in our lives. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, जीवन एक रणभूमि की तरह है जहाँ हमेशा हमारे जीवन में हम युद्धों का सामना करते रहेंगे. There will be not a point when you say now all wars are over, I can live at peace with my own self. जीवन में कोई भी वो समय नहीं आएगा जब आप इस बात को बोल सकें कि मेरे जीवन के सारे युद्ध खत्म हो गए, अब मैं अपने आप एक शांति का जीवन बिता सकती हूँ. But it's only through Christ, in God, we can have that peace. केवल मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर में हम वो शांति प्राप्त कर सकते हैं. Let's give a clap offering for our youth. जवानों को बधाई देते हैं, हमारे प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस energizers के लिए. You know, those who are new, you should know that our youth group is known as the energizers. जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, आपको बता दूं, हमारे जो जवानों का समूह है उसको हम energizers बोलते हैं. And we pray that the Spirit of God and the Word of God keep you energizing. और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपको लगातार बलवंत करता चला जाए. Thank God for the word that has come through Obed, and thank you Ebenezer for interpreting. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं Obed की तरह जो परमेश्वर ने वचन दिया और Ebenezer के लिए कि उसने अनुवाद किया. And we just thank God. Should we all rise to our places? आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं. Hallelujah. Thank you. Yes, there are things that make us restless. बहुत सी चीजें हैं जो हमें बेचैन करती हैं अपने जीवन में. Now Jesus said, I give you my peace. The peace that the world cannot give you. The peace that passes all human understanding. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ. वो शांति जो मनुष्य के ज्ञान से परे है. This peace is not when everything becomes good. ये शांति वो नहीं है जो सब कुछ अच्छा हो जाता है. Even when the situations are adverse, you still can enjoy that peace. जब situation बल्कि आप परिस्थितियां आपकी विपरीत हैं, तब भी आप इस शांति का आनंद ले सकते हैं. This peace is when you have always lot of bank account, a lot of balance in your bank account. ये शांति वो नहीं है जब आपके बैंक अकाउंट में बहुत सा पैसा हो. Even when your bank account is below sometimes minimum balance, but still you can have that peace. आपके अकाउंट में कहीं पर आपका पैसा मिनिमम बैलेंस के नीचे जा सकता है, लेकिन फिर भी ये शांति वो है जो उस समय बनी रहेगी. This peace is not when you are enjoying good health. This peace what Jesus is promising is the peace even when you are going through that sickness. ये शांति वो नहीं है जब आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं तब वो शांति मिलेगी. जब आप बीमारियों से गुजर रहे हैं तभी वो शांति आपके जीवन में बनी रहेगी. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Peace is only through your Creator. ये शांति केवल आपके सृष्टिकर्ता के द्वारा है. Even in this morning message I said, God is not a religion. आज के सुबह के संदेश में मैं जो मोटिवेशन मैसेज लिखता हूं उसमें मैंने इस बात को बोला, परमेश्वर कोई धर्म नहीं है. But he loves you as his children. वो एक बच्चे की तरह से प्यार करता है. And he is willing to lead you and guide you at every step so that you can enjoy the peace even when your circumstances are beyond your conception. वो एक बच्चे की तरह से प्यार करता है और अपनी शांति आपको देना चाहते हैं. जब परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो अपनी शांति से भर करके आपके दिशा निर्देशन आपको देना चाहता है. It's your choice. ये चुनाव आपका है. Would you like to say, Lord, I want your peace this morning, this day? क्या आप कहना चाहेंगे, परमेश्वर मुझे आपकी शांति चाहिए. I don't want to look at the circumstances I'm going through. मैं अपनी उन परिस्थितियों को नहीं देखना चाहती जिससे होके मैं गुजर रहा हूँ. But I want to hold on to the promises. लेकिन मैं तेरे वायदों को थामना चाहता हूँ. If anyone whose foundation is not built on the rock that is Jesus and His Word, I encourage you, please start building your foundation on the Word of God. अगर आज कोई व्यक्ति जिसकी नींव परमेश्वर पर उसके वचन पर नहीं है, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा अपनी नींव को उसके वचन पर डाल लें. If compromises have crept in your life, just say, Holy Spirit, help me to overcome those compromises. अगर कहीं से समझौते आपके जीवन में आ गए, पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए ताकि मैं उन समझौतों को अपने जीवन से दूर कर सकूं. I may live pleasing God alone so that I can enjoy the peace that He has prepared for me. उनसे मैं उसके वायदों पे, परमेश्वर मेरी मदद करें केवल आपके वायदों को थामे हुए मैं आगे बढ़ सकूं ताकि जो शांति आपने मेरे रखी है उसको मैं एंजॉय कर सकूं. Hallelujah. Father, we just thank you, Lord. Thank you for your Son Jesus who brought that peace on this earth. हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो इस पृथ्वी पे शांति को लेकर के आया. And we thank you, Jesus, that even in the midst of our adverse situation, you are ready to give us that peace, oh God. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमें अपनी शांति देने के लिए तैयार हैं. Help us, Lord, that we may come back to you
As a prodigal son, if anybody has gone away, I pray that each one will come back to you and to your hands, O God. आज मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आज कोई भी बड़ा पुत्र की तरह आपके घर से निकल के बाहर जा चुका है, वो फिर से आपके भवन में आ सके, अपने आप को आपके हाथों में सौंप सके, प्रभु सहायता करें. I release your peace right now. प्रभु आपकी शांति की मैं घोषणा करता हूं. If anybody right now in this room or would be listening to us online is restless in his or her life, has lost his or her peace, we release the peace of God right now. अगर आज को इस कमरे में है या ऑनलाइन जो सुनेंगे, उन्होंने अपनी शांति को खो दिया है, मैं प्रभु यीशु की मसीह की शांति की घोषणा करता हूं right now. The Spirit of God touch everyone. पवित्र आत्मा ने कुछ लीजिए right now. Oh Rabba Shaka, raise up your hand. If anybody is lacking peace, right now, raise up your hand. Raise up your hand. The Spirit of God is right in our midst. अगर कोई भी अपने हृदय में शांति को खो चुका है या शांति की कमी महसूस कर रहा है, अपने हाथों को उठाएं. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है. Right now, Holy Spirit, touch right now. Oh Rabba Shakha Ria Bakanda Rabba. Come Holy Spirit right now. Oh Rabba Bashira Barabara. Every peacelessness, every depressing thoughts, every negative thoughts, I command you, be broken down from every life. Hallelujah. अगर आज किसी के जीवन में कोई नकारात्मक परिस्थिति है, कोई भी नकारात्मक विचार है, अशांति का आत्मा जकड़े हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो टूटने पाए. हालेलुया. मसीह की शांति हर एक जीवन पर राज्य करने पाए. Let the peace of Christ rule every heart. Rule every heart. Many of you, God is telling me, have not slept for many nights. परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मुझे, कई लोग हैं जो कई रातों से सो नहीं पाए हैं. You have been restless and turning around, tossing on your beds. आप अपने बिस्तरों पे करवट बदलते आए हैं. And He's saying that I will give you that peace and you will sleep like a baby, a carefree sleep. परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी शांति से तुझे भरूंगा और भर रहा हूँ और तू एक बच्चे की तरह एक आराम नींद को सो पाएगी. Hallelujah. Just give yourself in God's hand. अपने आप को उसके हाथों में दे दीजिए. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence in our midst. Thank you for speaking to us through your word, from the beginning till the end. Thank you for ministering to us, God. धन्यवाद करते हैं शुरू से अंत तक हमारे बीच में पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए, वचन के द्वारा से बातचीत करने के लिए. We just thank you, Lord. We give you all glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते हैं. Even as we go back, let your word may continue to speak to us. जब हम जाते हैं अपने स्थानों में, आपका वचन हमसे लगातार बातचीत करे. Let your spirit continue to guide us and lead us. आपका आत्मा लगातार हमारी अगुवाई करे, मार्गदर्शन करने पाए. We just give you all glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते हैं. Thank you, Lord. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमारे दोबारा मिलने या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे. Now the love of Father God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit may abide with each one of us till Christ returns or we meet again. Let the church sit together. Amen. Amen. God bless you. Give a clap offering to God.